algorithm. Okay. So we started with the genetic algorithm. Okay. So I will speedily go through one revise again what we discussed about the genetic algorithm in the last class. Okay. So we start with the genetic algorithm introduction. In that we discuss that the genetic algorithm is the search-based optimization algorithm. Okay, and it based upon the principle of genetics and natural selection. Also, it is used to solve the optimization problem. So we discuss about the optimization also. So optimization is used to make process better. Okay. So then we discuss the what actually the genetic algorithm is. Then we discuss about the pool or the population of the possible solution. Okay, then we discuss the advantages, limitations, and the basic terminologies like population, chromosome, gen, LA, then genome type and phenotype. These are the fundamental. And also we discuss the decoding and encoding, what actually the decoding and encoding in the genetic algorithm is. Then fitness function, genetic operators. Okay. Also we discuss the basic structure of the genetic algorithm, that is starting with the I'm revising this again because now in this class we are discussing the population initialization, general fitness function, crossover, mutation, survival selection, then final the termination. So we are discussing this all steps one by one in the genetic algorithm process. Okay, so this actually is the a pseudocode for the a simple pseudocode for the genetic algorithm, basic structure you can say in a programming form, how genetic algorithm is written in the pseudocode form. Okay, so now we start with the first step, that is the population, genetic algorithm population. What actually हमने population means, हमने कल discuss भी किया था little bit about the population is. Can anyone let me know about the population? क्या बताया था कल कुछ थोड़ा सा, what actually the population is? पॉपुलेशन क्या है हमारा, एक तरह से सर्च स्पेस है, ठीक है, जो कि सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास बताती है, ठीक है. सो पॉपुलेशन इज अ सबसेट ऑफ सॉल्यूशन इन द करंट जनरेशन. Okay, it can also define as a set of chromosomes. So there are several things to be kept in mind when we're dealing with the genetic algorithm population. So there are some points to be keep in mind when we're designing a genetic algorithm. Okay, number one is the diversity of the population should be maintained, otherwise it might lead to premature conversions. ठीक है, so diversity होनी चाहिए, मींस अगर आपका जो सर्च स्पेस है, जो पॉपुलेशन है, उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए. अदरवाइज कि नहीं तो हम एक कन्फाइंड एरिया में ही वर्कआउट करते रहेंगे. वी कांट वर्क इन दी यू कैन से अगर जेनेटिक एल्गोरिथम जो हमारे वर्क करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द रियल टाइम बेस्ड प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं. तो और इन द सेंस दे विल वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ द थिंग्स. ठीक है, अगर हम एक ही पार्ट में मतलब बोल सकते हैं इसको, इसका समझ सकते हैं, एक ही एरिया में कन्फाइंड रहेंगे, देन वी कांट गेट द कन्वर्जेंस पार्ट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन. हमें डाइवर्स फीचर्स होने चाहिए हमारे पॉपुलेशन के अंदर, मतलब पॉपुलेशन मींस हमारे जो सर्च स्पेस है उसके अंदर. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज कितना होना चाहिए. ये बता रहा है क्या होना चाहिए, ये क्या बता रहा है कितना साइज होना चाहिए. ठीक है, सो ये बता रहा है क्वालिटी, ये बता रहा है क्वांटिटी, दो चीजें हैं पॉपुलेशन में. ठीक है, सो पॉपुलेशन साइज शुड नॉट केप्ट वेरी लार्ज एज इट कैन कॉज जेनेटिक एल्गोरिथम टू स्लो डाउन. ठीक है, अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो इतना भी ज्यादा ना होना चाहिए हो जाए कि हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम स्लो डाउन हो जाए. सो व्हाइल अ स्मॉलर पॉपुलेशन माइट नॉट इनफ फॉर ए गुड मैटिंग पूल. ठीक है, ना ज्यादा कम, ना काफी ज्यादा. सो दैट मींस योर population must be is an approximation of size. ठीक है, therefore optimal population size need to be decided by trial and error. तो पहले हमें सबसे पहले डिसाइड करना कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी भी हमें डिसाइड करनी है, दैट इज क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. Got it? So in population we discussed we have to keep two things in mind, that is quality of the population and the quantity of the population. Okay, so the population is usually defined as a two-dimensional array of size,
टू डायमेंशनल एरे किसका? साइज पॉपुलेशन, साइज एक्स एंड क्रोमोसोम साइज, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे है जिसमें साइज पॉपुलेशन, साइज एक्स एंड क्रोमोसोम साइज होना चाहिए, ये हमारा है, ठीक है। अब हम पॉपुलेशन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ स्टेप में क्या कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पढ़ा, सबसे पहले पॉपुलेशन को इनिशियलाइज कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो पॉपुलेशन इनिशियलाइज करने के लिए क्या है हमारे पास, दो चीजें हैं, दैट इज दी रैंडम इनिशियलाइजेशन एंड हेरिस्टिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली द रैंडम मींस, पॉपुलेट द इनिशियल पॉपुलेशन विद कंप्लीटली रैंडम सॉल्यूशंस, कि हम रैंडम वैल्यू डालें पॉपुलेशन, जो हमारा सर्च स्पेस है जो बेसिकली उसमें रैंडम वैल्यूज डाल दें। So populate the initial population with completely random solutions. Okay. The next one is heuristic में क्या आता है? The populate the initial population using a known heuristic for the problem. ठीक है? So that is unknown बोल सकते हैं उसको, unknown है, ये known है हमारे पास, क्योंकि हम heuristic problem के बेस पे हम values पता हमें क्या डाल रहे हैं, हमें ये चीजें we know this, we not having knowledge, but ये random values है based upon the solution. Got it? Are you getting my point? Please reply. समझ आ रहा है? Yes, yes, ma'am. ठीक है. Next is this. वाइवा तो वहाँ पे जा रहा है. वाइवा किसका है बेटा? मेरा 666 दोनों का. No worries. So next is population model. ठीक है. So population models, जो population model में define करें तो दो चीजें आती है, that is steady state and generalization, generalization. ठीक है. So steady state क्या बताता है हमारा, देखो, in steady state we generate one or two offspring in each iteration and they replace one or two individual from the population. तो क्या steady state क्या बताता है कि हम एक या दो offspring क्या हम जनरेट करेंगे, वन और टू ऑफस्प्रिंग इन ईच आइटरेशन। नंबर वन में हमने टू जनरेट करा आइटरेशन में, एंड दे आर रिप्लेस विद टू इंडिविजुअल। ये किससे रिप्लेस करेंगे, ये दो होंगे, ये वन, ये टू होंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे हम टू इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन। एंड steady state genetic algorithm is also known as incremental GA, that is an incremental genetic algorithm. दो मॉडल है हमारे पास, ठीक है इसके। नेक्स्ट is generation model. We generate n offsprings where n is the population size and then entire population replaced by the new one at the end of the iteration. क्या बोल रहा है कि हम जनरेट n offsprings जनरेट करेंगे, यहाँ पे क्या कितने जनरेट करें, ओनली टू, ठीक है। यहाँ पे n जनरेट करें वेयर n इज द पॉपुलेशन साइज, जितनी पॉपुलेशन मेरी पॉपुलेशन साइज जो है समझो 10 है, तो हम वी विल जनरेट 10 ऑफस्प्रिंग्स, ओके, एंड देन एंटायर population is replaced by the new one at the end of the iteration. This is the two population model. Okay, so the fitness function simply defined, अब ये हमने पढ़ा पॉपुलेशन बेस्ड की, पॉपुलेशन में क्या है हमारा कि दो चीजें होनी चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं एंड पॉपुलेशन मॉडल हम कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द फिटनेस फंक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, okay. So fitness function simply defined is a function which take a candidate solution to the problem as input and produce an output, as output how fit or how good the solution is with respect to the problem in consideration, ठीक है। सो जो हमारा फिटनेस फंक्शन है, बेसिकली इसको अगर हम सिंपल टर्म्स समझेंगे तो मींस हमारा ये फिटेड वैल्यू गुड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हेल्प करता है, और ये हमारा फिटनेस फंक्शन हमारे हिडन लेयर पे वर्क करता है। बेसिकली हिडन लेयर ही हमारा फिटनेस फंक्शन इवैल्यूएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी गेट द डिजायर्ड आउटपुट या गुड आउटपुट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फिटनेस फंक्शन इज डन रिपीटेडली इन ए जेनेटिक एल्गोरिथम एंड देयरफॉर इट शुड बी सफिशिएंटली फास्ट, कि हर स्टेप में हम फिटनेस वैल्यू निकालते रहते हैं, फिटनेस फंक्शन इवैल्यूएट करते रहते हैं। तो ये बोला कि ये फास्ट होनी चाहिए, जो बार बार कंप्यूटेशन है फास्ट होनी चाहिए। A slow computation of the fitness value can adversely affect the genetic algorithm and it make it especially slow. इस तो means हमारा genetic algorithm में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ऊपर, फिटनेस फंक्शन के ऊपर, मतलब rather than you can say speed of this genetic algorithm. हमने डिसएडवांटेजेस में पढ़ी थी, याद करो कि इट कैलकुलेट
fitness value again and again, that's why it will become slow at some time of, ठीक है, that's why, क्योंकि fitness function बार बार हम calculate करते हैं. In most of cases, the fitness function and the objective function, इस चीज को ध्यान सुनना, fitness function and objective function are the same as objective is either to maximize or minimize the given objective function. ठीक है, so क्या बोल रहे, काफी केसेस, मोस्ट केसेस में हमारा फिटनेस फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम होता है, आइदर उसको मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करना है, ठीक है. हाउएवर फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीपल complex problem with multiple objectives and constraint, an algorithm designer might also choose to have a different fitness function. ठीक है, तो जितना हमारे एल्गोरिथम मतलब प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, ऑन द बेसिस ऑफ जो एल्गोरिथम डिजाइन कर रहा है, जेनेटिक एल्गोरिथम डिजाइन कर रहा है, उसकी वो चॉइस करेगा कि किस तरह से फिटनेस फंक्शन हमें डिफाइन करना फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, सो आपको एग्जाम में कई बार डायरेक्टली सिर्फ फिटनेस फंक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय फिटनेस फंक्शन, हाउ इट इज इवैल्यूएटेड लाइक दिस. ठीक है, और फिटनेस फंक्शन शुड पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या होने चाहिए, दैट इज फिटनेस फंक्शन शुड बी सफिशिएंटली फास्ट टू कंप्यूट. एक तो फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन करने में, कंप्यूटेशन फास्ट होनी चाहिए इसकी. It must quantitatively measure how fit a given solution is or how fit individual can be produced from the given solution. तो मीन्स क्योंकि हमारा आउटपुट सबसे ज्यादा डिपेंड है इस पे, जो हमारी आउटपुट है जेनेटिक एल्गोरिथम की वो इस पे डिपेंड है. दैट्स व्हाई गिवन दैट कि क्वांटिटेटिवली मतलब फिट होना चाहिए वो, क्वालिटी वाइज भी एंड क्वांटिटी वाइज भी. Got it? So in some case, calculating the fitness function directly might not be possible due to inherent complexity of the problem at hand. In such cases, we do fitness approximation to suit our needs. So as the problem becoming complex, ठीक है, प्रॉब्लम जो हमें कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, तो उस टाइम पे हमारा फिटनेस फंक्शन को इवैल्यूएट करना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है, फिर उस पर्पस के लिए हमें गुड मतलब बोल सकते गुड वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उस टाइम पे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे फिटनेस फंक्शन. ठीक है, सो दिस इज इन सम केसेस स्पेशल केस भी हो सकता है फॉर द फिटनेस फंक्शन. ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा दैट इज मैं वो फिर अभी तक हमने पढ़ा क्या, फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया दैट इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन. अब नेक्स्ट इज दी दैट इज क्रॉसओवर. उससे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट सिलेक्शन, दैट इज पेरेंट सिलेक्शन. ओके, समझ आ रहा है? एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? No. Yes, please. No. Okay, so parent selection is the process of selecting parents which mate and recombine to create an offspring to the next generation. So means जो हमारे इनपुट वैल्यूज है, जो हमारे जो अगर आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो हमारा, तो जो हमारा इस जेनेटिक एल्गोरिथम में क्या होगा कि ये दो मतलब हमें पेरेंट सिलेक्ट करना है ताकि ये कॉम्बिनेशन म्यूटेशन करके फर्दर एक फाइनल रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सके. दैट इज अ पेरेंट सिलेक्शन. ठीक है, सो पेरेंट सिलेक्शन इज वेरी क्रूशियल टू द कन्वर्जेंस रेट ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम एज गुड पेरेंट ड्राइव इंडिविजुअल टू अ बेटर एंड फिटनेस सोल्यूशन. सो अगर ये अगर हमें गुड पेरेंट सिलेक्ट करेंगे तभी हमारा रिजल्टेंट यू कैन से फिटनेस सोल्यूशन हमारा गुड होगा, बेटर होगा. ठीक है, so maintaining good diversity in population is extremely crucial for the success of GA. जो first step है means diversity होनी चाहिए आपकी search space में. अगर diversity नहीं होगी then you can't find the good solution. So can anyone let me know about the what you mean by diversity? मैम तो बोल रही diversity, किसी ने मुझे बता सकते हैं diversity क्या हुई, क्या हो सकती है? What do you mean by diversity? Please let me know. What do you mean by diversity? Yes, anyone? What do you mean by diversity? सुना है वर्ड, मीनिंग पता है इस वर्ड का? बेटा यस नो तो बोल सकते हो आप लोग. Yes, tell me what do you mean by diversity? People from different social and ethnic backgrounds. Yes. Okay, or you can say your population is diverse enough that will, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सर्च स्पेस है, मेरे पास पॉपुलेशन है रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग. ठीक है,
तो उसमें जो मतलब सारे पैरामीटर्स, सारे फीचर्स होने चाहिए वेदर फोरकास्टिंग, ताकि वी कैन गेट द बेटर रिजल्ट, ठीक है। बिकॉज अगर हम पेरेंट्स अच्छे से सिलेक्ट भी कर ले, ठीक है, हम पेरेंट्स अच्छे सिलेक्ट के बाद हमारे पॉपुलेशन डाइवर्सिटी नहीं होगी, देन वी कांट गेट द गुड रिजल्ट। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बोला मेंटेनिंग गुड डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। So this taking up of the entire population by one extremely fit solution is known as premature conversion. क्या बोल रहा है? Taking up of entire population, पूरी population by one extremely fit solution is known as premature conversion, and it is undesirable condition in a genetic algorithm. That is a premature means हम पूरी population में से सिर्फ only एक one extreme मतलब एक one point ही मतलब feature ही लेते हैं और point लेते हैं, जो कि हमारा जो हम बोलते हैं that is a fit solution, उसको लेके पहले से हम define कर, that is a premature conversion, ठीक है। और ये it's a undesirable condition, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, दैट इज फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन। ओके, सो फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ पेरेंट सिलेक्शन, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्म में कर दूं, दैट इज अ प्रीमेच्योर कन्वर्जन, दैट इज नॉट एन ऑप्टिमल वन। सो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन करेंगे, दैट विल अ वेरी गुड वे टू select the parent, most popular you can say. So in this, every individual can become a parent with the probability which is proportional to its fitness function. तो यहाँ पे हम क्या probability concept use करेंगे, means हर एक को chance मिलेगा to be a parent. Therefore, fitter individual have a higher chance of meeting and propagating their feature to the next generation. Therefore, such a selection strategy applies a selection pressure to more fit individual in the population, evolving better individual over the time. So we apply the probability over the population, and in this, each and every will mate with everyone, so that they can get a better selection of the parents. Okay, so consider a circular wheel, ठीक है, where wheel is divided into n pipes, where n is the number of individual in the population. Each individual get a portion of the circle which is proportional to its fitness value, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने एक व्हील को कंसीडर करना है, ठीक है, जो कि व्हील किस तरह से होता है हमारा, इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। मैं तो डायग्राम थोड़ा बड़ा हॉचपॉच से बनी है। सो व्हील डिवाइड टू एन पाइप्स, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स बन गई, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। यहाँ पे एन क्या हुआ, जो व्हील की पाइप्स क्या हुई, दैट इज द एन इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, एंड ईच इंडिविजुअल गेट अ पोर्शन ऑफ द सर्कल विच इज अ प्रोपोर्शनल टू इट्स फिटनेस लेवल। तो मींस उसको हर एक को ना एक प्रोपोर्शन मिला है सर्कल में, इस व्हील के सर्कल में हर सबको प्रोपोर्शन मिला है, ठीक है। सो दिस इज फिटनेस प्रोपोर्शन सिलेक्शन बताया है, दिस इज द प्रोपोर्शन सिलेक्शन। समझ आया, इन्होंने इस एग्जांपल समझाया। सो पेरेंट्स फिटनेस प्रोपोर्शन सिलेक्शन के लिए हमारे पास टू इंप्लीमेंटेशन, दैट इज रोलेक्स व्हील सिलेक्शन, ठीक है। इन दिस द सर्कुलर व्हील इज डिवाइडेड एज डिस्क्राइब बिफोर, इस तरह से डिवाइडेड एज सर्कुलर व्हील की फॉर्म में पॉपुलेशन, ठीक है। अ फिक्स्ड पॉइंट इज चूजन ऑन द व्हील सर्कमफ्रेंस एंड द व्हील इज रोटेटेड। तो क्या करता है कि इस जैसे एक लोकेशन सिलेक्ट कर ली, ये लोकेशन सिलेक्ट करी, फिर उसको व्हील को रोटेट करा, ठीक है, पूरे सर्कमफ्रेंस पूरा रोटेट करा, ठीक है। द रीजन ऑफ द व्हील विच कम इन द फ्रंट ऑफ द फिक्स पोजीशन इज चूजन एज अ पेरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये मेरा ओ यार बड़ा गंदा व्हील बना, ठीक है, ये मेरी फिक्स पोजीशन है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 माई फिक्स पोजीशन। अब मैं व्हील को रोटेट करूंगी, ठीक है, और एज्यूम करो रोटेशन के बाद क्या होता है, ये मेरी ये इस पोजीशन में, यहाँ इस पोजीशन में 6 आता है, एज्यूम करो 6, सो दैट इज द पेरेंट, ठीक है। इन दिस रोलेट व्हील सिलेक्शन में ऐसे करते हैं। फॉर द सेकंड पेरेंट द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, फिर सेकंड पेरेंट सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, ठीक है।
सो नेक्स्ट इज द स्टोकेस्टिक यूनिवर्सल सैम्पलिंग. इसमें क्या होता है, इसको SUS भी बोलते हैं. ठीक है. सो इन दिस इज क्वाइट सिमिलर टू above one. However, instead of having just a one fixed point, we have multiple fixed point. One fixed point, multiple fixed point होंगे. Therefore, all the parents are chosen in just one spin of the wheel. ठीक है. ऐसे नहीं, जैसे यहाँ पे एक था, यहाँ पे मल्टीपल होंगे लाइक दिस, मल्टीपल. तो उस मल्टीपल, उस फिक्स लोकेशन में जो जो आ जाएगा वो एट टाइम पे 3 और 4 जो भी हमें लोकेशन रखी है उस टाइम पे 3 और 4 हमारे पेरेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे. ओके. Also, such a setup encourages the high fit individual to be chosen at least one. So, इसमें waiting time ज्यादा है to be choose, मतलब कि पेरेंट को सिलेक्ट करने में each and every one may have to wait for one spin, then next like this. ठीक है. इसमें at a once we can select the more than one parent. ठीक है. तो नेक्स्ट इसमें आता है टूर्नामेंट सिलेक्शन, रैंक सिलेक्शन. ठीक है. एंड रैंडम सिलेक्शन. ये हमारा पार्ट है किसका, दैट इज द स्टोकेस्टिक का पार्ट है. ठीक है. टूर्नामेंट सिलेक्शन में क्या होगा, सो इन K वे टूर्नामेंट सिलेक्शन वेयर K इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन एट अ रैंडम एंड सेलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ दीज टू बिकम अ पेरेंट. तो टूर्नामेंट में क्या होता है, टूर्नामेंट में हम जैसे अगर हम कोई भी टूर्नामेंट उसमें भी हम बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, K बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करना, लाइक दिस इन दिस द सेम थिंग इज डन. द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सिलेक्टिंग द नेक्स्ट पेरेंट. Tournament selection is extremely popular in literature as it even works with a negative fitness value also. ठीक है. Next is rank selection. Also work with the negative fitness values and it's mostly used when the individual in the population have very close fitness value. ठीक है. Rank selection. This led to each individual having an almost equal share of the pie, and hence each individual, no matter how fit related to each other, has approximate same probability of getting selected as a parent. Okay. So on the basis of rank selection, we can select the negative fitness value. Okay. And also the individual with the population having close fitness value. So this is a part of the stochastic one, that is SUS sampling. Tournament selection, rank selection. ठीक है. Next is random. In this strategy, we randomly select a parent. जैसे random हम numbers choose करते हैं वैसे ही population जो होगी उसमें से हम random values select कर लेंगे, parent select करेंगे. There is no selection pressure towards a fitter individual and therefore it is strategy is usually avoided. तो इसको हम ज्यादा avoid करते हैं. ठीक है. या हम tournament selection use करते हैं, ये rank selection based upon the problem. Okay. So this is the parent selection part. Any doubt to anyone? Please tell me no. समझ आ रहा है? हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं किसके? That is the जेनेटिक एल्गोरिथम. अभी हमने पॉपुलेशन इनिशियलाइज करी, फिटनेस वैल्यू कैलकुलेटेड, पेरेंट सिलेक्ट करा. अब हम जाएंगे पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन प्रोसेस में. मींस अब पेरेंट सिलेक्ट हो गए, देन इट विल अंडरगो द क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन प्रोसेस. समझ आ रहा है? Please reply. Hurry up. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने स्टेप्स हो गए अभी हमारे? पॉपुलेशन, देन सेकेंड स्टेप क्या था? पेरेंट सिलेक्शन. ठीक है. देन थर्ड इज द क्रॉसओवर वन, क्रॉसओवर. ठीक है. आपको एग्जाम में सेपरेटली व्हाट यू मीन डिफाइन करने को एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रॉसओवर इन द जेनेटिक एल्गोरिथम या पेरेंट सिलेक्शन इन द जेनेटिक. अलग अलग से भी आ सकता है और पूरा इन अ वन गो भी आ सकता है. ठीक है. सो क्रॉसओवर ऑपरेटर, हमारे क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, एज ए ऑपरेटर होते हैं. मैंने कल क्लास में बताया था अगर आपको याद हो. क्रॉसओवर ऑपरेटर इज एनालॉगस टू रिप्रोडक्शन एंड बायोलॉजिकल क्रॉसओवर. सेम है. ठीक है. हमारे बायोलॉजिकल क्रॉसओवर की तरह. In this, more than one parent is selected and one or more offspring are produced using the genetic material of the parents. ठीक है. More than one, हमने 2 parents select करे, then we apply the crossover to get the new offspring. ठीक है. Crossover is usually applied in genetic algorithm with a probability PC.
पीसी प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम इसको यूज करते हैं, हर जगह में पीसी यूज करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दैट इज क्रॉसओवर. नेक्स्ट इज क्रॉसओवर ऑपरेटर इन दिस. सो हम इस सेक्शन हम क्रॉसओवर ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है. So it to be noted that these crossover operators are very generic, and the genetic algorithm designer might choose to implement a problem specific over operator as well. ठीक है, अब कैसे हमारे इसको समझना बहुत, ठीक है. नंबर वन इज पॉइंट, वन पॉइंट क्रॉसओवर. मैं बताती हूँ कौन कौन से टाइप. वन पॉइंट है, ठीक है, मल्टी पॉइंट है हमारे पास, यूनिफॉर्म है, ठीक है, होल अर्थमेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड लास्ट वन इज डेविस ऑर्डर क्रॉसओवर. ठीक है, सो वी हैविंग 5 क्रॉसओवर ऑपरेटर्स. अब देखो कैसे. इन दिस वन पॉइंट क्रॉसओवर, अ रैंडम क्रॉसओवर पॉइंट इज सिलेक्टेड and the tails of its two parents are swapped to get a new offspring. देखो ये दो पेरेंट्स हैं, ठीक है. अब इसमें क्या बोलता है, रैंडम पॉइंट इज सिलेक्टेड. एक रैंडम पॉइंट सिलेक्टेड, दिस, ये पॉइंट सिलेक्ट, दिस रेड लाइन इज अ रैंडम पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है. ये P1 है, पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, ठीक है. अब आफ्टर क्रॉसओवर, ये क्रॉसओवर के बाद क्या रिजल्ट है, देखो क्या हो रहा है, एंड एट द टेल्स ऑफ इट्स टू पेरेंट्स आर स्वैप्ड. ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है. इन दोनों, ये जो इसके टेल मतलब इनके सेकंड हाफ में जो बच गया उसको हमने स्वैप कर दिया, दैट इज ये इधर आ गया, ये इधर आ गया. दिस इज क्रॉसओवर. समझ आया, वन पॉइंट क्रॉसओवर, सिंगल पॉइंट सेलेक्ट करा और उसके बाद हमने क्रॉसओवर अप्लाई किया. यस मैम. ठीक है. द नेक्स्ट इज मल्टी पॉइंट क्रॉसओवर. मल्टी पॉइंट में क्या होगा, वन पॉइंट में वन पॉइंट या मल्टी पॉइंट में दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए. जनरलाइज्ड फॉर्म है हमारी वन पॉइंट की, वेयर इन ऑल्टरनेटिंग सेगमेंट्स आर स्वैप्ड टू गेट न्यू ऑफस्प्रिंग. देखो ये नहीं हमने स्वैप करा, ये करा, फिर ये नहीं करा, लाइक दिस. तो यहाँ पे हमारे ये पार्ट स्वैप हुए, देखो ये, दैट इज मल्टी पॉइंट. गॉट इट? Yes ma'am. Then next is uniform crossover. Uniform crossover, तो इसमें क्या देखो, ये तो मेरा पेरेंट्स है P1 एंड P2. इसमें क्या हुआ देखो, यूनिफॉर्मली इस तरह से देखो, 0 इधर चला गया, 5 ऊपर चला गया, मीन्स ये इन दो ऐसे इस तरह से. ओके. So in a uniform crossover, we don't divide the chromosome into segments. Rather, we treat each gen separately. In this, we essentially flip a coin for each chromosome to decide whether or not it will be included in the offspring or not. देखो ये चेंज हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये भी हुआ, लाइक दिस. ये हम डिसाइड करेंगे कि हमने ये जेन से चेंज करना है कि नहीं, ये करना है कि नहीं, लाइक दिस. ठीक है. दैट इज यूनिफॉर्म क्रॉसओवर. And fourth one is whole arithmetic recombination. So this commonly used for integer representation and works by taking weighted average of two parents, like this, child 1, child 2. Means arithmetic form में apply किया. So obviously if alpha equal to 0.5, then both the children will be identical as shown in the following image, like this. ये जो वैल्यू थी इसको अर्थमेटिक वैल्यूज कैलकुलेट करी. अल्फा डॉट एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा डॉट वाई, ये कैलकुलेट करी बेस्ड ऑन दिस. यही चीज, यही लिया है वैल्यूज और इस पे इन सब में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लाइक ये वाली फॉर्मूला अप्लाई किया. दिस इज होल अर्थमेटिक रिकॉम्बिनेशन. इसमें हर एक जेन है वो अर्थमेटिक बोल सकते हो आप, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है. ठीक है. तो दिस इन सब में ये चाइल्ड 1 में ये अप्लाई हुआ है, तो इट विल गिव दिस वैल्यू. चाइल्ड 2 में ये फॉर्मुलेशन अप्लाई हुई मैथमेटिकल, देन इट विल गिव टू दिस रिजल्ट.
ठीक है, सो ये वैल्यू पुट करके देखना, आपको यही वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। So next is Davis order crossover, that is OX1. So is used for pre-mutation based crossover with the intention of transmitting information about relative ordering of the offspring. So कैसे काम करता है ये? Create two random crossover points in the parent and copy the segment between them from, इसकी डायग्राम है हमारे पास, देखो यहाँ पे। So ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले हम इसको डायग्राम वाइज समझेंगे। Create two random crossover points in the parent and copy the segment between them from first parent to the first offspring. Random points निकाल दिए, ठीक है, और इसको कॉपी कर लिया दिस, ठीक है। देन टू रैंडम पॉइंट्स बोले ना इन्होंने, ये दो रैंडम पॉइंट, अच्छा ये दोनों में रैंडम पॉइंट्स क्रिएट करे, और ये हमने क्या करा, एंड कॉपी द सेगमेंट बिटवीन देम फ्रॉम द फर्स्ट पेरेंट। हमने फर्स्ट पेरेंट की सेगमेंट कॉपी कर रहा है, ये देखो 3 4 5 6, सेकंड का नहीं करा, ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। रैंडम पॉइंट दोनों में सिलेक्ट कर लिए और सेगमेंट, और हमने एक ही सेगमेंट को कॉपी करा है, ठीक है। देन नाउ starting from the second crossover point in the second parent, copy the remaining unused number from the second parent to the first child wrapping around the it. तो अब देखो हमने क्या किया, 281, ये तो सेम ऐसे रहा, 281 यहां से सिलेक्ट कर लिया, एंड फिर क्या बोला इन्होंने, देन copy the remaining unused number from the second parent to the first child wrapping around the list, wrapping around the 970, that is 97, ये आ गया, and 0 this। समझ आई? पहले ये चीज कॉपी कर ली, फिर हमने रैप करा ये इस 970 लाइक दिस, सेकंड पेरेंट से। फर्स्ट पेरेंट से तो सीधे जो हमने सेगमेंट सिलेक्ट किया उसको ऐसे लिख दिया दिस, देन सेकंड सेगमेंट का ये यूज करा, देन 970 इसके फर्स्ट, इसको रैप कर दिया। समझ आया? यस या नो? है ना? सो इस तरह से हम सेम रिपीट द सेम प्रोसेस टू गेट द सेकंड, मतलब इस तरह से हम इसको वर्क करेंगे। So this is the Davis order crossover, OX1. So there exists a lot of other crossover like partially mapped crossover, order-based crossover, shuffle crossover, ring crossover, etc. So these are the 5 जो कि हम normally हम use करते हैं, ठीक है? So this is all about the crossover. Next हमारा mutation बचा है and survivor selection में देख लीजिए termination condition, तो थोड़ा ये चलो भी हम complete कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब हमने क्रॉसओवर किया, अब हम म्यूटेशन डिस्कस करेंगे। सो इन सिंपल टर्म्स, म्यूटेशन में बी डिफाइंड एज स्मॉल रैंडम ट्वीक इन द क्रोमोसोम टू गेट अ न्यू सॉल्यूशन। मतलब जैसे ट्विस्ट पार्ट है थोड़ा सा। इट इज यूज्ड टू मेंटेन एंड इंट्रोड्यूस डाइवर्सिटी इन द जेनेटिक population and it is usually applied with the low probability, that is the PM probability। chromosome crossover क्या थी, PC, इसका PM। the probability is high than genetic algorithm get the reduced to a random search, ठीक है। सो म्यूटेशन के लिए म्यूटेशन ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, ओके। जैसे हमने पिछले इसमें हमारे पास कौन कौन से, बिट फ्लिप म्यूटेशन, ठीक है, रैंडम रीसेटिंग स्वैप म्यूटेशन, देन स्क्रबल म्यूटेशन, इन्वर्जन म्यूटेशन, ठीक है। these are the 5 mutation over here, ठीक है। first one, this in this bit flip mutation we select one or more random bit and flip them। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दी और को फ्लिप कर दिया, ठीक है। 001 ये 0, तो क्या ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 0। इसको इस पार्ट को फ्लिप कर दिया, इसको स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट सेम है, इस बिट से जो आगे है उसको फ्लिप कर दिया, मतलब रोटेट कर दिया। देन रैंडम रीसेटिंग में होगा, random resetting the extension of the above one, ठीक है। in this random value from the set of the permissible value is assigned to a randomly chosen gen, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसका ये एडवांस वर्जन रैंडम सेटिंग,
तो क्या बोल रहा है, रैंडम वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू इज असाइन टू अ रैंडम चूजन जेन। तो यहाँ पे जैसे ये रैंडम वैल्यू ये है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी भी इसको रैंडमली असाइन कर देंगे वो वैल्यू जो, ओके। नेक्स्ट इज स्वैप म्यूटेशन। इन दिस क्या करेंगे, वी सिलेक्ट 2 पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम एट रैंडम, 2 पोजीशन सिलेक्ट कर ली हमने, दिस एंड इंटरचेंज द वैल्यूज, और इस वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, 6 की जगह 2, 2 की जगह 6, ठीक है। सो दिस इज अ कॉमन इन परम्यूटेशन बेस्ड एनकोडिंग। तो जिस तरह से हमें परम्यूटेशन बेस्ड एनकोडिंग है तो उसमें यहाँ पे ये स्वैप म्यूटेशन ज्यादा यूज करते हैं। देन स्क्रैम्बल म्यूटेशन, ठीक है, is also popular with the permutation representation. In this entire chromosome, a subset of gene is chosen and their value are scrabbled or shuffled randomly. देखो हमने ये सेगमेंट चूज करा 2, 3, 4, 5, 6, अब इसको शफल कर दिया लाइक दिस 3, 6, 4, 2, 5, शफलिंग कर दी, रैंडमली शफलिंग कर दी। दिस इज का स्क्रम्बल्ड म्यूटेशन। देन इनवर्स म्यूटेशन में क्या है, वी सिलेक्ट अ सबसेट ऑफ जेन like in scrambled one, but instead of shuffling the subset we merely invert the entire string in the subset। देखो सेम यही है, तो हमने कैसे इसको कैसे शफल किया, 6, 5, 4, 3, 2, इसको इन्वर्स कर दिया जो सिलेक्टेड था। यहाँ पे क्या था, कुछ भी उसको मतलब इसमें यहाँ पे शफल करके करा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली इन्वर्स करके लिख दिया। दिस इज अ इन्वर्स म्यूटेशन, ओके। The next is the survivor selection policy, ठीक है, that is the second last step, determine which individual are to be kicked out and which is to be kept in the next generation, ठीक है। So this is a crucial step, it should ensure the fitter individual are not kicked out of the population while at the same time diversity should maintain in the population. So ये क्या चेक करता है, सबसे मेन काम है कि जो हमें म्यूटेशन एंड क्रॉस ओवर से जो वैल्यूज मिल रही है तो हमने उससे बेस्ट फिटर वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम याद हो, अगर मैं आपको फिर से बैक ट्रैक करती हूँ, तो अगर आपको याद हो हमने जो डायग्राम पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस, उसमें अगर जब हमारा ये स्टेप आया था वहां पे जो वैल्यू हम मतलब किक ऑफ कर देते हैं वो वैल्यू हम, देखो यहाँ से जो वैल्यू किक ऑफ अगेन पॉपुलेशन के पास चल जाएगी और अगेन फिर वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो सिलेक्शन मीन्स इट विल सिलेक्ट द फाइनल आउटकम फॉर द रिजल्ट ऑफ द जेनेटिक एल्गोरिथम, ठीक है। सो इन सम जेनेटिक एल्गोरिथम एम्प्लॉय एलिटिज्म, in simple term ये डिफाइन करने को आ सकते हैं, in simple term it means the current fittest member of the population is always propagated to the next generation. It means elitism means जो हमारा current जो member है उसको हम always propagate करेंगे कहाँ पे, next generation पे। Therefore undergo no circumstance can the fittest member of the current population is replaced, कुछ भी हो जाए वो replace नहीं होगा। The easiest policy is to kick the random number out of the population, but such approach frequently have conversion issue. Therefore the following strategies is widely used. कैसे, ये चीज हम हर बार नहीं यूज कर सकते क्योंकि जो हमने सिलेक्ट जो फिटेस्ट मेंबर है वो हर बार सही, वो एक्चुअल वैल्यू ना, मतलब दैट इज गुड सोल्यूशन ना हो, दैट इज नॉट एवरी टाइम पॉसिबल, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हम इसको ना यूज करके हम एज बेस्ड सिलेक्शन और फिटनेस बेस्ड सिलेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। In this age based we don't have notation of a fitness, it is based on premise that each individual is allowed in the population for a finite generation where it is allowed to reproduce, after that it is kicked out of the population। इसमें क्या करते हैं, जो जैसे हमारी फिटनेस वैल्यू फिटेड वैल्यू आई उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिप्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करेंगे, आफ्टर दैट अपना काम कर, देन इट विल बी गेट आउट गेट किक यू कैन से किक आउट मींस उसको फिर से पॉपुलेशन में भेज देंगे, मतलब जो जो आ रहा है उसको रिप्रोड्यूस करो एंड देन इट विल गेट आउट फ्रॉम द टास्क, ठीक है, एंड अगेन इट विल गोज टू द पॉपुलेशन जो हमारा सर्च स्पेस है, ठीक है। इन दिस सबको चांस मिलेगा इसमें। इन फिटनेस बेस्ड सिलेक्शन में क्या होगा, इन दिस द चिल्ड्रन टेंड टू रिप्लेस द लीस्ट फिट इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। हम किसको रिप्लेस करेंगे, जो लीस्ट फिट इंडिविजुअल है, ठीक है। The selection of least fit individual may be done using variation of any of the selection policy described with like tournament selection, fitness like this. So in इसमें भी हमारे जो selection based algorithms है वो use करेंगे हम, okay। So there are two things in this survival selection, that is three things: elitism,
then age based selection and fitness based selection. And the last step is termination condition, जो हमारा एल्गोरिथम को टर्मिनेट करेगी, ठीक है. So it is important determining when a genetic algorithm will end. It is observed that initially the genetic algorithm progresses very fast with better solution coming in a very few iteration, but this tend to saturation in the later stage. क्या बोल रहा है कि अगर हम स्टार्टिंग स्टेज में देखेंगे हमारा एल्गोरिथम वेरी फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है, तो कहीं एक पॉइंट में जाके वो एक सैचुरेट पॉइंट आ जाता है, इट नॉट वर्क वेल, ठीक है. तो उस चीज के लिए हमें so we usually want to terminate conditions such that our solution is close to optimal one. Terminate तभी होगा जब हमें optimal solution मिलेगा, ठीक है. तो इसमें क्या बताया इन्होंने, we keep one of the following termination condition like this: when there has been no improvement in the population of for the X iteration, हमें कोई improvement नहीं दिख रही है, then we terminate it. When we reach our absolute number of generation, then we terminate. Or last, when the objective function value has reached a certain predefined value, then we terminate the condition. Okay. For example, in a genetic algorithm, we keep a counter which keep track of the generation for which there has been no improvement in the population. हमें counter use करेंगे जो कि track करे कितनी iterations हो गई, कितनी improvement है हमें values में, ठीक है. Initially we set this counter to 0. Each time we don't generate offspring which are better than the individuals in the population, we increment the counter, ठीक है. If the fitness any of the offspring is better, then we reset the counter to 0. जैसे हमें कोई बेटर वैल्यू मिल गई, अगर नहीं मिलती तो हम काउंटर बढ़ाते रहते हैं, अदरवाइज हम उसको उस वैल्यू को सेव कर लेते हैं और काउंटर 0 कर देते हैं. सो एल्गोरिथम टर्मिनेट्स व्हेन द काउंटर रीचेस टू प्रीडिटरमाइंड वैल्यू, ठीक है. सो टर्मिनेशन कंडीशन इज also high problem specific, and genetic algorithm designer should try to find out the various options to see the suited particular problem for the best one, ठीक है. So this is the task for the genetic algorithm designer कि वो क्या termination condition, क्या values select करेगा जो कि predefined value होगी जहाँ पे जाके हमारा algorithm terminate हो जाएगा. So this is all about the complete process of a genetic algorithm जो कि हमने ग्राफ से डिस्कस करा था. Any doubt to anyone? This is very very important question. 8 मार्क्स में डायरेक्टली आ सकता है और सब मार्क्स, जैसे आपको पेरेंट सिलेक्शन आ गया, क्रॉसओवर आ गया, म्यूटेशन, इस तरह से पूछ सकते हैं. Any doubt to anyone? We completed this basic structure and this is all about the genetic algorithm. Any doubt to anyone? No. Yes. समझ आ गया? ये समझ आया? Yes, Yes, ma'am.